Praise the Lord. What a beautiful time it was when we were praising God, and I felt like this should not stop. जब हम खुदा की सिताइश कर रहे थे, ऐसा लगता था बस समय यहीं रुक जाए, ये खत्म ही ना हो। मुझे पता चला कि कुछ गाने अभी तक मैंने नहीं सीखे या मुझे नहीं पता, लेकिन सुनकर रूह ताजा हो गई। खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ कि आपके बीच में मुझे आज लेकर आए, पास्टर इमैनुअल का, पास्टर सफदर का और पास्टर अनीता और बाकी सारे पासवानों का मैं धन्यवाद करती हूँ, शुक्रगुजारी देती हूँ। और मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसकी तमन्ना थी कि मैं आऊं और खुदा का कलाम आप तक पहुंचा सकूं। मेरा काम है बीज बोना। मैं जहां भी जा सकती हूँ जाकर बीज बोती हूँ, और खलियान जो है वो खुदा तैयार करता है, और जो खलियान है वो रूहों का है, क्योंकि अगर बीज बोया जाए तो वो खाली नहीं जाता। आज भी खुदावंद ने मेरे दिल में एक ऐसा वचन दिया, एक कलाम दिया है जो मैं आप तक बांटना चाहती हूँ। Even today the Lord has given me a word which I'd like to share with you, and I sow the word of God wherever I go. Though I am a missionary, but I will not come to you and say, can you help me? Can you give me something? No, I will sow the word of God and let the word of God bring the harvest. Amen. Hallelujah. पाकिस्तान में कहते हैं कि जिसने लाहौर में देखा उसने कुछ नहीं देखा। हाँ जी, नहीं पैदा ओ तेरी, वो तो पैदा ही नहीं हुआ, ये तो और दूर चले गए। हम हिंदुस्तान में कहते हैं जिसने मुंबई नहीं देखी, पहले तो बॉम्बे होती थी अच्छी शराफत से, अब उसे मुंबई कर दिया। जिसने मुंबई नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा। सो मैंने मुंबई देखी है। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग मुंबई नहीं गए होंगे, तो मैं मुंबई आपके पास ले आई हूँ। आमीन। मैं गुजारिश करूंगी मेरे भाई का, अगर वो कोशिश करें कि वो कह रहे थे शायद ना प्ले कर सके, कर सकते हैं तो यह है मुंबई। जैसे अभी हम गा रहे थे, बरकत दे, वो देने वाला खुदा है, वो सब कुछ दे सकता है, वो मुहैया करता है। जैसे हमने इंग्लिश में गाया, जेहोवा जायरा माय प्रोवाइडर shall provide all my needs. Just he is the one who is our provider. और इसको यकीन रखें कि वो हमारी जरूरतों को पूरी करता है। मेरे अजीजों, मैं चाहूंगी कि आप खुदा से ये मांगो कि ऐ खुदा, इस बंदी के जरिए आज तो अपने कलाम को मुहैया कर, तू हमसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि मैं क्या कह रही हूं उससे कोई फायदा नहीं, लेकिन खुदा जो कहता है वही जरूरी है। Whatever I have to say is not important, but what God has to say is what we are here for. So expect God to speak to you. खुदा से आप उम्मीद करें कि खुदा आपसे बात करेगा।
اور جب آپ امید کرو گے تبھی آپ اس کے کلام سے ایسا کچھ پا سکو گے جس کے بارے میں آپ نے شاید تصور بھی نہ کیا. میں ایک بات خدا کے کلام سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا جب آپ کو بلاتا ہے تو وہ آپ کو آپ کے بن جانے سے پہلے اس نام سے بلاتا ہے. یعنی کہ جب بھائی پاسٹر بنے اس کے بعد نہیں, لیکن پاسٹر بننے سے پہلے سے خدا انہیں پاسٹر بنا چکا ہے. لیکن انسان کب ہمیں بلاتا ہے؟ جب ہم بن جاتے. کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو ہم ویٹ کرتے ہیں, ابھی ڈاکٹری کر رہا ہے, ابھی اور 2 سال, اب 1 سال اور, اب انٹرنشپ. جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن گیا. لیکن خدا کا طریقہ فرق ہے, وہ مختلف ہے. God's way is totally opposite to what man's way is. He will identify you and call you what you are going to become, not what you are becoming. So in that respect, I have a word from the Lord. Isi siddhant par, I don't know what is principle in Urdu, but on this principle I have a word that I want to share with you. And the word says that God is a God who is different from man's thoughts. His ways are different. His thoughts are different. خداون کے خیالات ہم سے مختلف ہیں, خداون کے طریقے ہم سے مختلف ہیں. جیسے کہ آپ کو میں بتاؤں, ایک وقت کی بات ہے کہ خدا نے ابراہم سے کہا, اس کے فرشتے کو بھیجا اور فرشتے کے ذریعے خدا نے کہا کہ تم بہت سارے دیشوں کے باپ بنو گے. اب سوچو ایسی بات سن کے ابراہم کو کیسا جھٹکا لگا ہوگا, اور اس نے کہا میں بہت سارے دیشوں کا باپ بنوں گا, میں تو ایک بچے کا بھی باپ نہیں ہوں. He said, how do you say that I'm going to be the father of many nations when I'm not even the father of a child? He was quite surprised that God is saying this to him. He said, I'm childless. My wife is barren. So how can I be a father of many nations? ابراہم نے خدا کو جواب دیا کہ میں جو ہوں بغیر بچے کے ہوں, میری عورت بانجھ ہے, تو آپ کیسے کہتے ہو کہ میں بہت سارے دیشوں کا باپ بنوں گا؟ تو یاد رکھنا, خدا نے وہ کہا تھا جب بیٹا پیدا بھی نہیں ہوا تھا. خدا نے اسے بہت سارے دیشوں کا باپ کہا جبکہ ایک بیٹا بھی نہیں پیدا ہوا. سو میں نے کہا آپ کو کہ خدا مختلف ہے. جب آپ کلام کو پڑھتے, جیسے بہن نے بتایا کہ کلام کو پڑھیں, اور جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو اس میں 2 پہلو ضرور دیکھیں. ایک پہلو ہے کہ خدا کیا کرتا ہے, خدا کیا سوچتا ہے, خدا کیسے بولتا ہے. دوسرا پہلو ہے انسان کیا کرتا ہے, انسان کیا سوچتا ہے اور انسان کیا بولتا ہے. So whenever you read the word of God, look at 2 things. There are 2 dimensions. Look at God and look at man. And you understand God. You understand how he works. And when you look at man, then you know where you need to come into the right perspective. جب آپ کلام میں خدا کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہو کہ خداون کیا کہتا ہے, کیسے سوچتا ہے, اس پہ رویہ کیا ہے. اور انسان کے بارے میں آپ سمجھتے ہو کہ اچھا انسان یہ کرتا ہے, ایسا غلط ہے, یہ صحیح ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. سو میرے عزیزوں, ہمیں خدا نے نجات دی ہے. ہمیں نجات دینے کے بعد اس دنیا میں یہ موقع دیا ہے کہ دن بدن ہم بدلتے جائیں, دن بدن ہمارا رویہ بدلتا جائے, ہماری سوچ بدلتی جائے. کیوں؟ کیونکہ خداوند چاہتا ہے ہم صورت اور سیرت میں یسوع کی مانند بنیں. Because God wants that we may become in the image and the likeness of Jesus Christ. So day by day we have an opportunity to change. And today I want that you hear the word of God because the change is about to come. میں چاہتی ہوں آج خدا کے کلام کو آپ سنیں کیونکہ ایک بدلاؤ آنے کو ہے. آمین. آپ کو پتہ ہے کلام کہتا ہے کہ جب خدا نے سولوس کو ریجیکٹ کر دیا, اس کو نکار دیا,
खुदा उससे नाराज हो गए। तो खुदा ने नबी सामुएल को कहा कि मुझे वो आदमी मिल गया है जो मेरे दिल के करीब है या दिल के सब तरह है। I have found a man after my heart who will be the king of Israel. खुदावन कहता है कि वो इजराइल का राजा बनेगा। अब किसके बारे में खुदावन बात कर रहे थे, कोई बता सकता है? दाऊद के बारे में। और जब खुदा ने दाऊद को आदमी कहा तब दाऊद तो टीनेजर था, वो तो आदमी भी नहीं था। When God called David a man after his own heart, he was not even a man. He was just a little boy. He was a teenager who used to look after the sheep of his father. He was a shepherd boy. But God calls you what you have not yet become, and man calls you only after you become what you are. Amen? So it is interesting that God called him even before he became the king of Israel. In the same way, God calls you blessed, right? God calls you successful. God calls you healthy. God calls you talented. I mean, I was looking at these boys playing the dholak. That was talent. Amazing talent. Right? Now, in some cases, you may not be what God is calling you, but know this, that don't sit there and say, what do you mean, Lord? I'm not talented. I'm not blessed. I'm not healthy. Don't go vice versa or opposite to what God is saying. खुदावंद आपको कहता है आपने बरकत पाई है, आप सेहतमंद हैं, आप जोरावर हैं, आप में खूब कला और क्या है, टैलेंट को क्या कहते हैं, सलाहियत है। तो ये ना कहना कि है खुदा तू क्या बात कर रहा है, जैसा अब्राहम ने कहा देखते हुए कि मेरे पास तो औलाद भी नहीं, मैं इतने सारे देशों का बाप कैसे बन सकता हूं, क्योंकि वो देख क्या रहा था, अपने हालात को। आप जब देखते हो तो खुदा को देखें, वो क्या कह रहा है उस पर एतमाद रखें, क्योंकि जो वो कहता है वही पूरा होगा। और मैंने जैसे आपको बताया कि खुदावंद वो चीजों को पुकारते हैं या उनको एड्रेस करते हैं वो जैसे हो चुकी हैं या बन चुके हैं, अभी तक बने नहीं, लेकिन वो वैसे आपको बुलाते हैं जैसे आप बन चुके हैं। खुदा के कलाम में बहुत सारे वायदे हैं जो खुदावंद ने आपके ऊपर बोले हैं। आप जब कलाम पढ़ते हो, जैसे सिस्टर ने कहा, कलाम पढ़ते समय सिर्फ उसको रट्टा नहीं लगाना या वैसे ही नहीं पढ़ देना, उसमें खुदा बात करता है आपसे। कलाम के जरिए खुदा आपको अपने वायदे देता है, उनको मार्क कर लीजिए, डेट लिख लीजिए कि इस तारीख पर खुदावन तूने मुझे ये वायदा दिया था। उस वायदे को वापस खुदा के साथ आप फुलफिल। सो मेरे अजीजों, ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जिंदगी में हो सकता है कुछ गोल्स हो, आपके दिल में कोई इरादे हो और आपकी कोई आइडियाज हो, क्योंकि खुदा ने ही आपके अंदर ये सब कुछ डाला। ज़बूर 37 verse 4 कहता है, Psalm 37 verse 4 says, I will read from the Amplified Version, delight yourself in the Lord and He will give you the desires and petitions of your heart. अपने आप को खुदा में क्या करो, खुश रखो, मगन हो जाओ खुदा में, और वो आपकी दिल की ख्वाहिशों को, आपकी दरखास्तों को पूरा करेगा। हालेलुया। So you got to do your part and God will do His part. अभी हमने कहा बरकत दे, खुदा बरकत दे, और उस फिर 4 संडे के बाद हम फिर वही गाना गाएंगे, बरकत दे खुदा बरकत दे, लेकिन अभी तक बरकत क्यों नहीं आई? मैं आज उस बात पे बात करना चाहती हूँ। खुदा मेरी ये दुआ सुन ले, मेरे फाइनेंसेस में मेरी मदद कर दे। खुदा मेरे डॉक्टर की रिपोर्ट अच्छी नहीं आई हॉस्पिटल से, मेरी सेहत, मुझे सेहतमंद कर दे, लेकिन अभी तक हुआ ही नहीं। और आप थोड़ी देर दुआ करते हैं और फिर दुआ छोड़ देते हैं। लेकिन आज इस कलाम के जरिए हम देखेंगे कि जब हम खुदा को खुश करें, तब खुदावन हमारी जरूरतों को
ہی نہیں بلکہ ہماری خواہشوں کو پورا کرتے ہیں. آمین. انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر میں دیکھوں گا تو ہی میں وشواس کروں گا. ہاں جی. لیکن خدا تو کچھ اور ہی کہتا ہے کلام میں. وہ کہتا ہے تم وشواس کرو, بھروسہ کرو, اعتماد رکھو تو دیکھو پورا ہو جائے گا. So it is just the opposite of the natural. Spiritual is opposite of the natural. جو حقیقی طور پہ اس سے خدا کے جو روحانی طریقہ ہے وہ بالکل مختلف ہے. ہاللیلویا. آپ میں سے کسی کی ہو سکتا ہے میڈیکل رپورٹ اچھی نہ آئی اور آپ بڑے پریشان ہو اور آپ سوچتے ہو نہیں میں تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. ہاں جی, میں ٹھیک نہیں ہو سکتا. میری یہ حالت ہے کہ میں اب پہلے جیسا نہیں ہوگا. پچھلے سال کی میں پادری صاحب کو بتا رہی تھی, میری ٹورانٹو تک آ کے مجھے واپس انڈیا جانا پڑا کیونکہ میں گر گئی سیڑھیوں سے اور بہت چوٹ لگی مجھے, اور ایسا لگتا تھا پھر دوبارہ نہیں میں آ کے کھڑی ہو سکتی. پھر سے آ کر اسی زور سے اسی جوش سے خدا کا کلام نہیں دے سکتی. لیکن میں نے ایک ارادہ کیا, میں نے کہا خداوند تو نے مجھے بزنس سے نکالا, سروس میں ڈالا, اپنی خدمات کے لیے مجھے ہندوستان لے کر گیا. آج اس کی ضرورت کے لیے کیا میں نہیں کھڑی ہو سکتی؟ میں کھڑی ہوں گی اور طاقت آپ دو گے. ہاللیلویا. اسی لیے جب کسی کی کوئی بھی طبیعت ٹھیک نہ ہو, کسی کے کوئی جسمانی تکلیف ہو, تو یہ نہ کہنا ہائے میں مر گیا, ہائے میں مر گئی. تب ہمیں یہ کہنا ہے خدا کے یسوع کے کوڑے کھانے سے مجھے شفا مل گئی. When you are sick, when you have an infirmity, when your report says that there is no way out for you, then do not be disheartened. Do not give up. Do not say that I am done. Nothing good's going to happen for me. But instead, quote the word of God and say, Lord, you said that by your stripes I am healed. Amen? And then you will see the difference. When you are weak, then do not say, oh, I'm so weak, I don't think I can do it. Say, when I am weak, then I am strong. جب آپ کمزور ہو تو اپنی کمزوری کا بیان نہ کرو, بلکہ یہ کہو جب میں کمزور ہوں تب میں زورآور ہوں. ہاللیلویا. سو کہیں پہ کوئی تبدیلی آنی ضروری ہے, اور وہ تبدیلی خدا میں نہیں ہم میں آنی ضروری ہے. There is a little change that has to come, an alteration that has to come, and that does not have to come with God. It has to come with you and me. It is we who have to practice it right for God to open the heavens and give us our blessings. He's waiting to bless you. You know, He heard you today when you were singing Barkat De, bless me, bless me, bless me. He heard you and He wants to bless you. But how? There is reasons that your blessings are still waiting in heaven. خداوند آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, لیکن کیسے؟ آج بھی آپ کی برکات آسمان میں رکی ہوئی ہے خدا کے پاس, وہ کیوں نہیں آ پا رہی آپ تک؟ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے خدا کے کلام سے ایک آپ کو چھوٹی سے حوالہ, ایک کہانی, حوالہ کہانی ہوتا ہے نہیں, کہانی کیا کہتے ہیں؟ اردو سے اسٹوری کہتے ہیں, کہانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر کہانی ٹھیک ہے. لوکا کی انجیل اس کے پہلے باب میں ایک کہانی ہے. میں ورڈ اسکرپچر نہیں پڑھوں گی پورا, لیکن آپ کو وہ کہانی ضرور بتاؤں گی. اسپیشلی فار مائی ینگ پیپل آئی وڈ لائک ٹو سے دس اسٹوری, بیکاز دس اسٹوری از فار یو اینڈ فار می. ٹرن ٹو یور نیبر اینڈ سے دس اسٹوری از فار یو اینڈ فار می. یہ کہانی آپ کے لیے اور میرے لیے. آمین. The Bible says that the angel of the Lord appeared to Zacharias. Zacharias کے سامنے خدا کا فرشتہ آ کے کھڑا ہوا, and he told him that you are going to have a son. اور اس سے کہا کہ تیرا بیٹا ہونے والا ہے. ہاں جی, بیٹوں کی آج بات ہو رہی ہے. ہاں جی. And they were to name him John. اس نے کہا تمہارا ایک بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام یوحنا رکھو گے. یوحنا is right? یوحنا رکھو گے. And Zacharias' wife Elizabeth
had been barren for many years. लेकिन हकीकत ये थी, now point to be noted, हकीकत ये थी कि ज़करिया की जो बीवी थी वो बहुत सालों से बांझ थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। और जब ये बात फरिश्ते ने ज़करिया को बताई, उसने वही कहा जैसे अब्राहम ने कहा, ये कैसे मुमकिन है, क्या ये हो सकता है? क्योंकि हमारी इंसानी फितरत, हमारी इंसानी सोच जो है वो लिमिटेड है, लेकिन हमारा गॉड अनलिमिटेड है। So the angel said to Zacharias, he was no doubt excited initially, and then when he started reasoning, realizing his own body that he's old and his wife is barren, जब खुदा के फरिश्ते ने ज़करियास से बताया कि तुम्हारा बेटा होगा, शुरू में तो बड़ा खुश हुआ, बाद में उसके बाद में उसके दिमाग में बात आई कि मैं तो बुजुर्ग हो गया हूं, मेरी बीवी जो है वो तो बांझ है, तो बच्चा कहां से होगा हमें? और वो उस बात से उसका भरोसा शिफ्ट हो गया। उसने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, जैसे अब्राहम के साथ हुआ वैसे ही नए एहदनामे में ज़करिया के साथ हुआ। इसीलिए ज़करिया ने फरिश्ते से कहा कि ये देखते हुए कि मैं बुढ़ा हूं, बुजुर्ग हूं और मेरी बीवी भी बुढ़ी हो रही है, ये नहीं होगा, ये नामुमकिन है। और ये हम उसके बारे में ही नहीं बात कर रहे, हमारी जिंदगी में कई बार जब कलाम में से ऐसा कोई वायदा देखते हैं, यहोवा जायरा, my provider is going to provide all my needs. हालेलुया। वो गा तो लिया, लेकिन हम इस बात पर एतमाद नहीं करते कि मेरी सारी जरूरतों को वो पूरी करेगा। हालेलुया। तो इस बात से हमें सीखना है, ज़करिया ने भी ये भरोसा नहीं किया कि उनको बेटा हो सकता है, उसकी बीवी बेटे को जन्म दे सकती है। ज़करिया ने फरिश्ते से कहा, क्या तुम यकीन से कहते हो कि ऐसा हो सकता है? ये क्यों कहा उसने? क्योंकि he doubted. He said, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि ऐसा होगा? क्योंकि उसने शुबा किया, शक किया। He doubted the angel. So he asked him, do you think it's possible? Right? How can this happen? और फिर पूछता है ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन खुदा के फरिश्ते ने ज़करिया को जवाब क्या दिया? कोई जना उर्दू में निकाले, लूका की अंजील पहला बाब 19 और 20 आए। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, कोई जना प्लीज उर्दू में पढ़ दीजिए। I am Gabriel, who stands in the presence of God and was sent to speak to you and bring you these glad tidings. खुशखबरी that is. But behold, you will be mute and not able to speak until the day these things take place, because you did not believe my words. फरिश्ता कहता है, because you did not believe my words, which will be fulfilled in their own time. हालेलुया। पढ़ी कोई जना 19 और 20। Now do you see here? He says, because you did not believe what I said, you're going to be muted till the promise is fulfilled. उसने कहा क्योंकि तूने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, इसलिए क्या है, तू चुप रहेगा। क्या बोला? बहुत सारे लोग समझ रहे हैं। हाँ जी, क्या रहेगा? चुप रहेगा। इसीलिए तो चुप रहेगा, बट चुप रहने कहने में मजा नहीं आता। आपके फोन में म्यूट बटन है, आप किसी से बात कर रहे हैं और अगर आप म्यूट बटन दबा दो, जब तक आप उस म्यूट को अनम्यूट नहीं करोगे वो म्यूट ही रहेगा। उसी तरह से ज़करिया को कहा, उसके मुंह को म्यूट बटन दबा दो, उसको म्यूट कर दिया और बोला जब तक वो वायदा जो खुदा ने दिया पूरा नहीं होता, तू म्यूट ही रहेगा।
क्योंकि तूने मेरे बात का भरोसा नहीं किया। अब सोचो ज़करिया, उसको कहते बेटा होगा, और वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाली बात कर रहे हैं, और उसके बाद इतनी खुशखबरी देने के बाद कहते हैं तेरा म्यूट का बटन दबा दिया। म्यूट समझते हैं ना? हाँ जी, तू कुछ नहीं कह सकता इसके बाद, चुप। अब उसके बाद सोचो, एलिजाबेथ हामला हुई और उसके 9 महीने बाद अपना बेटा जना उसने। 9 महीने तक ज़करिया की क्या पोजीशन होगी सोचो। ऐसे ही बोलता होगा बिकॉज़ म्यूट था, उसका म्यूट का बटन दबा दिया था, अनम्यूट नहीं किया उसे। कब तक अनम्यूट नहीं किया देखेंगे अपन। हम लोग देखते हैं कि कब तक उसे म्यूट रखा, और इसलिए उसे म्यूट किया क्योंकि वो मुंह से कोई गलत बात कह के वो आने वाली बरकत को रुका देता। आज हमें जरूरत है हम अपने म्यूट बटन को दबाएं, क्योंकि हम खुदा से मांगते हैं, खुदा का कलाम भी पढ़ते हैं, उसको बोलते भी हैं, और उसके बाद हम बिल्कुल उससे ऑपोजिट कन्फेस करते हैं। पता नहीं खुदा देगा कि नहीं। वो गुआंढियां नूं ते देखता, मैनू तो हाले तक पता नहीं देना कि नहीं। हाँ जी, गुआंढियां नाल बड़ा ही साडा वैर रहता है। क्यों? क्योंकि अभी तक बरकत आई नहीं। आप शुबा करने लग गए, आप गिव अप करने लग गए, आप वो कहने लगे जो आपको नहीं कहना चाहिए। लेकिन आज से याद रखना, जब आप किसी फायदे को लेते हैं खुदा के, जब आपने खुदा से दुआ में कुछ भी मांगा है, उसके बाद इस मुंह को म्यूट बटन ऑन करना, क्योंकि आप ही अपनी बरकत, आप भी अपने जवाब, आप भी अपनी सेहत, आप भी अपने गोल को पूरा होने से रोकते हो। जो आज आपके पास होना चाहिए वो रुका हुआ है आने के लिए। लेकिन अगर आप अपने मुंह से गलत बात नहीं कहोगे, अगर मुंह से आप अपने शुबा और अपने शक को नहीं बयां करोगे, तो जल्द से जल्द खुदा उस बरकत को आप तक देगा। उसने कहा है और वो करेगा। सो यहां पर हम देखते हैं इस कहानी में कि क्योंकि ज़करिया अपनी ही जीत को हार में बदल देता, शक करके, फरिश्ते ने कहा जब तक वो वायदा पूरा नहीं होता तू नहीं बोलेगा। Zechariah was told that he's not going to speak, he's going to be muted until that promise of God which was given will come to pass. Why? Because he would talk himself out of his victory. क्यों? क्योंकि वो अपनी ही फतेह से अपने आप को हार में बदल देता, निकल आता। इसलिए so we see here that your destiny is calling you. आपका मुकाम आपको बुला रहा है, but you cannot see it happen. आपका मुकाम आपको बुला रहा है लेकिन आप नहीं देख सकते उसे, इसीलिए आप यकीन नहीं कर पाते कि खुदा ने मेरे लिए एक मुकाम रखा है। That's why it is hard for you to believe that God has kept a destiny for you and He wants to bring it in your life. Young people, there is a destiny that God wants to bring in your life. You're not to live just as it is. There's something great that the Lord wants to do. खुदावंद आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, आपको कुछ बनाना चाहता है। क्यों? आप में क्यों इंटरेस्टेड है खुदावंद? क्योंकि आप अगर कुछ बन गए, आपने अगर बरकत पाली, आपने अगर चंगाई पाली, अगर आप किसी मुकाम पर पहुंच गए, तो खुदा आज गब्रियल अगर आपके सामने खड़ा है, जबरील क्या बोलते हैं, जब्राइल अगर आपके सामने खड़ा है और वो आपको कह रहा है I stand in the presence of my Lord, thus whatever God has promised you will come to pass. जब्राइल आपसे कह रहा है मैं अपने खुदा की हजूरी में खड़ा होता हूं, इसीलिए जो कुछ भी खुदा ने आपसे वायदा किया है वो पूरा होगा, वो हाँ और आमीन है। It will come to pass if you stay in faith. कंडीशन क्या है? अगर आप अपने ईमान को बनाए रखो तो वो जरूर पूरा होगा, इसमें कोई शक नहीं। All the forces of darkness cannot stop it from happening.
अंधकार की जितनी भी ताकतें हैं वो आपके वायदे को आप तक आने में रोक नहीं सकती, क्योंकि खुदा ने कह दिया इसे मैं बरकत देना चाहता हूँ, उसे मैं बरकत देना चाहता हूँ, इसे मैं बरकत देना चाहता हूँ। तो कोई भी अंधकार की ताकतें हिम्मत नहीं है कि खुदा की कई बात क्या करना। हालेलुया। All the forces of darkness cannot stop it from happening, and God can open doors that no man can shut. और खुदा ऐसे दरवाजे आपके लिए खोलेगा जो कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। लेकिन एतमाद करना आपको है, भरोसा करना आपके हाथ में। खुदा के कलाम में आज भी जो मैं बात कर रही हूं वो मेरी नहीं बात, कलाम की बात है। आप घर जाके लूका की अंजील उसमें ये पढ़िए इसके बारे में, पहले बाब। सो आपके लिए खुदा का आज कलाम ये कहता है कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं देना चाहता हूं, सदियों के बाद नहीं, अभी देना चाहता हूं आप में और उन इजराइलियों में जिन्हें मिस्र से निकाला था। उसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो समझ ही नहीं पाए अपने खुदा को। जिस खुदा ने इतने बड़े मौजे किए उनके लिए, वो समझ ही नहीं पाए उसे। वो जब मौका मिलता था बुड़बुड़ कुकू, कंप्लेनिंग, चुगली, इसको करते रहते थे। और उसी की वजह से जो 11 दिन में वो वायदे के देश में पहुंच सकते, 11 दिन में वायदे के देश में पहुंच सकते थे, उन्हें 40 साल लग गए उसी पहाड़ी के चक्कर का। क्यों? क्योंकि खुदावंद उनकी गलतियों को, उनकी कमजोरियों को, उनकी कमअक्ली को निकाल रहा था और वो समझते नहीं थे। जब उन्हें कोई बात समझाई जाती थी उस टाइम हाँ 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 कहते थे, थोड़ी देर बाद फिर वही दिलाए। तो आप और मैं उस तरह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जब कब्र से जिंदा होकर उठे, उन्होंने जब स्वर्ग की तरफ अपना जाने का इरादा बताया, उन्होंने हमारे लिए पाक रूप को दिया। वो हमारा मददगार है, वो हमें सहायता करता है, मदद करता है। आज आपको अगर जरूरत है मेरे अजीजों, बड़े बैंक बैलेंस की नहीं, बड़े पोजीशन वाले जॉब की नहीं, आपको जरूरत है खुदा की रूह की जरूरत है। If there is something that you need today, it is not a big bank balance, it is not a high position, it is not to be a celebrity, it is to be one who has the Holy Ghost. Because the power of the Holy Ghost will work in your life if the presence of the Holy Ghost is in you. जब खुदा की हजूरी आपकी जिंदगी में होगी तो खुदा का सामर्थ, उसका जोर, उसका पावर, जी कुवत, उसकी कुवत आपकी जिंदगी में काम करेगी। हालेलुया। सो आपके लिए खुदा का कलाम कहता है कि खुदावन ऐसा दरवाजा खोलना चाहते हैं जो कोई इंसान बंद नहीं कर सकता। अगर आप यकीन करते हो उसकी कही बात पर, आमीन कहें उसे। 9 महीने गुजर गए, एलिजाबेथ का बेटा हुआ और खुदा का वायदा पूरा हो गया। उनका रिवाज था कि 8वें दिन सारे रिश्तेदार उनके घर में जमा होंगे, जिस घर में बेटा होता। तो सारे रिश्तेदार आ गए, आंटी गुआंटी नहीं, रिश्तेदार, और वो सारे जमा हो गए और बैठ गए और कहने लगे आज हमने फैसला करना है कि इस बच्चे का नाम क्या रखना है। इसका नाम इसके बाप के नाम के पीछे रखेंगे, इसका नाम क्या होगा? ज़करायस। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, एलिजाबेथ ने पीछे से धीमी आवाज में कहा नहीं, उसका नाम ज़करायस नहीं, यूहन्ना रखा जाए। The relatives came on the 8th day and they decided, that was their tradition in their culture, that they would decide what should be the name of the child that is born in this home. So they decided that we are going to name this child after his father. He is going to be called Zacharias. And when they said that, slowly Elizabeth said, no, his name is not going to be Zacharias, his name is going to be John. ये वही जॉन है जो बाद में John the Baptist. This is the same John we are talking about, who later on became John the Baptist. बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। और जैसे ही उस औरत ने कहा कि उसका नाम यूहन्ना रखा जाए,
ساروں کی نظریں مڑ کے اس کی طرف دیکھنے لگی, گندی گندی نظروں سے. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم پہ عورت کو بولنے کی اجازت نہیں تھی. تو منہ کیوں کھولیا؟ چپ رہ. تینوں کس نے پوچھا؟ ہاں جی, کس نے پوچھا تجھ سے؟ یہ ہمارا کام ہے. تو انہوں نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا کہ تو نے یہ بات کہی کیسے. اس سمے جب انہوں نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا تو زکریا سمجھ گیا کہ یہاں تو گڑبڑ ہے, یہ لوگ تو ماننے نہیں والے میری بیوی کی بات. اس نے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا کہ مجھے پین اور پیپر دو. بول نہیں سکتا تھا نا, نوٹ تھا, تو اشارہ کر کے کہا. تو انہوں نے لا کے دیا اسے, اور اس نے اس کے اوپر کیا لکھا؟ جے. آگے کیا ہے؟ او. انگریزی نہیں آتی تمہیں؟ ایچ این, جان. اور جیسے ہی اس نے جان کہا, میوٹ بٹن ہٹ گیا, کھل گیا. بائبل کہتی ہے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام یوحنا رکھا, جان کا. آج کسی سے خداوند کہہ رہا ہے کہ تمہارا مقام تمہیں بلا رہا ہے. تمہیں نہیں پتا خدا کی کیا تمہارے لیے یوجنا ہے, کیا پلان ہے. You don't know what is God's plan for you, but your destiny is calling you. God has plans for your future, but you got to trust Him. آپ کے آنے والی زندگی کے لیے خدا کے کچھ ایسے پلانز ہیں جو آپ کے فائدے میں ہیں, لیکن آپ کو اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا. اس کا بھروسہ کرو. خدا جو کہتا ہے اس کا بھروسہ کرو. He's talking to you as you will be one day, not what you are today. خدا آپ سے ویسے بات کر رہا ہے جو آپ ایک دن ہوگے, نہ کہ ویسے جو آج آپ ہیں. ہاللیلویا. آپ کے گزرے ہوئے کل شاید آپ کو بولتا ہوگا, ارے یار یہ تو میرے لیے نہیں ہے وچن, میرے ساتھ تو میں تو بڑی غلطیاں کر چکا ہوں, میرے ساتھ تو نہیں کچھ ایسا ہونے والا. باقیوں کی تو خدا سنتا ہے, میری تو سنتا ہی نہیں. آپ بیٹھے یہ سوچ رہے ہوگے, لیکن خداوند آپ سے یہ کہتا ہے, آپ کا آسمانی باپ آپ سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں میں نے معاف کر دیا, تمہیں ایک نیا موقع دیا. میری دیا, my mercy, میری دیا تمہاری غلطیوں سے. تم نے بہت غلطیاں کی ہوگی, لیکن میری دیا, اردو میں کیا کہتے ہیں, مرسی, فضل. تم نے بہت غلطیاں کی ہوگی, لیکن میرا فضل تمہاری غلطیوں سے بہتر ہے. You may have made many mistakes in life, but the Lord is saying to you that I have forgiven you, I have restored you, and my mercy is much more than your mistakes. Hallelujah. Remember one thing, my friend, God will never give you a promise if He did not know how to bring it to pass. یاد رکھنا, خداوند آپ کو کبھی بھی وعدہ نہیں دے گا, کوئی ایسا وعدہ نہیں دے گا جو اگر خدا کو پتا نہیں کہ اس کو پورا کیسے کرنا ہے. ہمارا خدا سب کچھ جانتا ہے. He is an all-knowing God. Hallelujah. اور اس کے پاس سب کچھ ہے. He is El Shaddai. He has everything. So don't doubt Him. If He said it, He's going to do it. You got to trust Him. اگر اس نے کہہ دیا وہ کرے گا, اور آپ کو اس پہ بھروسہ کرنا. اب میں ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو میوٹ بٹن تو میں نے لگانے کو کہہ دیا کہ آج کے بعد جب آپ دعا کرتے ہو, خدا سے کچھ مانگتے ہو, جب آپ خدا کے کسی وعدے پر کھڑے ہوتے ہو, لیکن کوئی بھی نیگیٹو بات نہیں کرنی, منہ بند رکھنا ہے. یہ تو میں نے کہہ دیا. لیکن اگر ایسا کوئی حالات آپ کے ساتھ ہو جائے جہاں بولنا پڑے, تو آپ کیا بولیں گے, کیا کہو گے؟ بائبل میں جی پیپر اور پین منگاؤ گے؟ ہاں جی, بڑا اچھا آئیڈیا. پیپر اور پین منگا لیں گے, لیکن خدا تھوڑا اور مہربان ہے. خدا کے کلام میں دوسرا سلاطین 4 باب 8 آیت سے ایک کہانی ہے. میں پوری کہانی میں نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے یقین ہے آپ جانتے ہو اس کہانی کو. ایک عجیب سی کہانی ہے ایک عورت کے بارے میں, اور اس عورت کا نام تک نہیں دیا ہوا ہے. ایک شہر ہے جس کا نام ہے شنیم, اور یہ شونامائٹ عورت ادھر رہتی ہے.
वो और उसका खामन। और ये शुनामाइट औरत को मैं शॉर्ट में सिर्फ बताऊंगी, आप घर जाके पढ़ सकते हैं कहानी। उसको खुदा का नबी अलीशा उसकी अच्छाई देखकर उसको वायदा देता है कि अगले साल इसी वक्त तेरा बेटा होगा। अब इस औरत का भी बेटा नहीं था, कुदरती मैंने एग्जाम्पल भी ऐसा ले लिया। यानी कि वो कितनी जरूरी चीज है। हर औरत, हर लड़की शादी करके औरत बनती है, हर औरत चाहती है कि मैं मां बनूं, और इसके पास बेटा नहीं था। सो खुदा का खादिम कहता है अगले साल इसी वक्त तुझे बेटा होगा। और ऐसा ही हुआ, उसका बेटा हुआ, और बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अपने पापा के साथ वो खेतों में चला गया जहां कटाई होती है, राइट? He went into the fields where the reapers were reaping. He went with his dad. He was a little boy. And the Bible says that when he went there, he said to his dad, Dad, my head, my head. His head was hurting unbearable. जब वो पापा के साथ वहां चला गया, बाइबल कहती है उसने अपने बाप से कहा मेरा सिर, मेरा सिर। उसके बाप ने कहा नौकर से इसे जल्दी से मां के पास पहुंचाओ इसके, और उसे घर ले जाया गया। वो घर चला गया, मां को बताया मेरा सिर, यानी कि मेरे सिर दर्द हो रहा है। मां ने उसे अपने घुटनों पर लिटा लिया, और बाइबल कहती है वो अपनी मां के घुटनों पे लेटा और कुछ देर बाद मर गया। After some time, after the boy slept on the knees of his mother, he died. Now, some of you may sit here and think, if God had given this promise, how could he die? आपके मन में यह शुबा जरूर आएगा कि अगर खुदा ने यह वायदा दिया था तो वो लड़का मरा कैसे? उसको तो जिंदा रहना चाहिए था। लेकिन बाइबल बताती है वो मर गया, और मां ने उसे उठाया, और जो उन्होंने नबी के लिए कमरा दीवार पे बनाया था वहां रह गई, बिस्तर पे नबी के डाल दिया, दरवाजा बंद किया और बाहर आ गई। अगर उसकी जगह कोई और मां होती तो क्या करती? छाती पीटती, रोती, कोसती कि क्यों वो दिन मुझे ये बेटा दिया, क्यों, अगर इसे ले लेना था। रोती, 4 जन और आ जाते, वो कुछ कहते, ये कुछ कहती, लेकिन इसने कुछ नहीं कहा। बेटे को उठाया, जाके उस बिस्तर पे लिटा दिया, दरवाजा भेड़ दिया। बाइबल कहती है वहां से आ गया। आकर उसने अपने हस्बैंड को कांटेक्ट किया और अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे एक गधा, डोंकी और एक नौकर दे दो ताकि मैं नबी से मिलकर जल्दी वापस आ जाऊं। सुनो मेरी बात। She says, give me a donkey and a servant that I may go and meet the prophet of God and come back quickly. हस्बैंड कहता है आज तो फुल मून भी नहीं है, पूरा चांद भी नहीं है, आज ऐसा कोई खास दिन भी नहीं है, तो क्या जरूरत है एकदम से जाने की? सब कुछ ठीक है। गौर करें मेरी बात। वो कहता है आज एकदम से नबी के पास जाने की क्या जरूरत आन पड़ी, क्या सब कुछ ठीक है? तो औरत जवाब क्या देती है? आप होते तो क्या जवाब देते? अरे क्या ठीक है, अच्छा भला हम लोग को बच्चा नहीं था, बच्चा दे दिया खुदा ने और वो बच्चा मर गया। आप और मैं ऐसा जवाब देते, लेकिन उस औरत ने क्या जवाब दिया? उस औरत ने कहा सब कुछ ठीक है। What was the reply she gave? All is well. Say after me. All is well. I said, say after me. सब कुछ ठीक है। हालेलुया। सब कुछ ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं था। ये खुदा आपसे क्यों कह रहा है? क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे हालात हमारे जिंदगी में आ जाते हैं जब कुछ भी ठीक नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे ध्यान रखें, म्यूट बटन दबाना है, और अगर बोलना है तो सिर्फ all is well. Glory, hallelujah, hallelujah. So when you got to remember that don't speak negative to the promise that God has given. Be quiet. But if you have to speak, say all is well. पहले तो बोलो ना, शुभ ना दिखाओ,
शक ना करो, कंप्लेन ना करो, ग्रम्बल ना करो, गिव अप ना करो, बोलना ही पड़ेगा। तो उस औरत की तरह कहना सब कुछ। हालेलुया। She said all is well. And then she went to meet the prophet. फिर वहां से उसके आदमी ने गधा और नौकर भेजा और वो जल्दी जल्दी गई नबी को मिले, अलीशा को। और नबी ने, अलीशा ने खिड़की से देखा तो उसने पहचान लिया ये तो वही औरत है शूनेमाइट। तो उसने अपने नौकर गेहाजी से कहा ये तो वही औरत है, शूनेमाइट है, जाके रास्ते में पूछ कि उसका आदमी ठीक है, उसका बेटा ठीक है, इस वक्त ये आ रही है यहाँ पर, क्या बात है। तो गेहाजी भागा जाता है और उसको पूछता है सब कुछ ठीक है, आपका आदमी ठीक है, यानी बुढ़ा था ना। तो उन्होंने सोचा होगा बॉम्बे से कहते ऑफ हो गया। पहले मैं बॉम्बे की तो ऑफ कैसे हो जाता, यानी कोई मर गया तो कहते वो फलाना ऑफ हो गया। हाँ, हमारे वहां ऐसे ही कहते बॉम्बे ऑफ हो गया। तो वो गेहाजी ने उसको ऐसे सवाल पूछा कि आपका आदमी ठीक है, आपका खामन ठीक है, आपका बेटा तो ठीक है ना। सब सवाल करने के बाद उस औरत ने कहा ऑल इज वेल। आपकी बाइबल में पढ़िएगा सब कुछ ठीक है उसका, और कुछ भी ठीक नहीं था। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूं, कभी जिंदगी में ऐसा मौका आता है कि कभी कुछ नहीं ठीक होता, तब भी कुछ ना कहना, या तो म्यूट बटन दबा लो या कहना ऑल इज वेल। हालेलुया। तो सब ठीक भी हो जाता है। उसने जब कहा ऑल इज वेल, ये कहानी में नहीं जाऊंगी, लेकिन आपको ये बताना चाहती हूँ वो खुदा के नबी को लिया उसने, वो जल्दी चलो अपने घर ले गई, उसको कमरे में ले गई, बेटा दिखाया मरा पड़ा हुआ उसके नबी की बिस्तर पर, और फिर नबी ने दरवाजा बंद किया। उसके बाद बाइबल बताती है वो बेटा जो मर चुका था कुछ घंटे पहले वो जिंदा हो गया। मैं टाइम की वजह से उसको छोटा बोल रही हूं, आप पढ़ लीजिएगा बाइबल में, वो जिंदा हो गया। नबी ने उसको अपनी मां के पास दे दिया और कहा लो तुम्हारा बेटा। सोचो उसकी खुशी का क्या अंदाजा होगा, क्योंकि ऑल इज वेल। हाँ जी, तो आपने इसको तकिया कलाम बनाना है। आपको इस बात को याद रखना है कि जब कभी मैं बोलूं तो मैं यही कहूं कि ऑल इज वेल। कुछ ट्रांसलेशन, किंग जेम्स वर्जन कहता है ऑल इज वेल, न्यू किंग जेम्स कहता है इट इज वेल, आपका उर्दू का कलाम कहता है सब कुछ ठीक है। सो जो भी आपको जमे, बट वचन के आधार पे कहना, बाइबल के आधार पे कहना। और वो बेटा वापस जब जिंदा हो गया तो ये साबित हो गया कि उस औरत की अक्ल बदी थी कि उसने अपने मुंह से कोई नेगेटिव बात नहीं निकाली, और वो ना निकालने की वजह से खुदा क्या कर सका, उसकी सोए मरे हुए बेटे को जिंदा कर सका। आज मुझे नहीं पता आपकी कौन सी ऐसा सपना है, कौन सी ऐसी ड्रीम है, कौन सी ऐसी बात है जो आप गिव अप कर गए हो। आपको ऐसा लगता है नहीं ये नहीं होने वाला मेरे लिए। अगर आपकी शादी के लिए आप सोचते हो तो आप वहां पे भी शक करते हो, आपको अच्छी लड़की पता नहीं मिलेगी कि नहीं, अच्छा लड़का मिलेगा कि नहीं। काम के लिए सोचते हो तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, चलो ये काम मिल गया यही ठीक है। लेकिन आज खुदावंद आपसे कलाम कर रहा है, खुदावंद आपसे कह रहा है मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरे राज्य मेरी हुकूमत में तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छी चीज है। क्योंकि हम क्या हैं, हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। उसने हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीजें रखी हैं, और वो चाहता है कि हम इत्मीनान रखें, हम विश्वास करें, हम ट्रस्ट करें, हम बिलीव करें कि ऑल थिंग्स आर पॉसिबल टू दोज़ हू बिलीव। सब कुछ मुमकिन है उनके लिए जो विश्वास करते हैं, जो यकीन करते हैं। और आज खुदावंद आपके इत्मीनान को बढ़ाना चाहता है, आपके यकीन को बढ़ाना चाहता है। अब जब आप कहोगे बरकत दे, तो तैयार रहना, बरकत खड़ी है आपके लिए, बरकत वेट कर रही है, बरकत आना चाहती है आपकी जिंदगी में। हालेलुया, दैट्स व्हाट द लॉर्ड वांट्स टू डू। अगर आप इस कलाम को समझ गए हैं और आप खुदा की वेदी पर आकर ये कहना चाहते हैं मैं अब से
कोई भी गलत बात नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। मेरी मदद कर, पाक रूह मेरी मदद। We need the help of the Holy Spirit. Even we pastors need the help of the Holy Spirit. Don't be so confident कि बस हमने सुन लिया हो तो हो जाना है, म्यूट दबाया म्यूट हो गया, ऑल इज वेल कहना है, ऑल इज वेल कहते हैं कि नहीं। जब मुश्किलात आती है, परिस्थिति ऐसे होती है, जब आपके सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा होता है, तब मुंह से गलत बातें निकल जाती हैं। तो आपको आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि खुदा अपनी पाक रूह के जरिए हमारी मदद करता है। अगर आपने खुदावन से ये इरादा किया है कि जो मेरी बहन ने बोला है, जो कलाम ये लेकर आई है, ये मेरे लिए है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी, आपकी अगर इजाजत है या पाए, खुदा को छूना चाहता है, बरकत देना चाहता है। Come, the Lord wants to bless you. He wants to touch you. If that is you, that has now decided that I will do what the word of God says. This word is for me. Come. God wants to bless you. आओ, खुदा आपको बरकत देना चाहता है। आप आते हो उसके मसबे पर, क्या मांगने आते हो? आप उससे मांगने आते हो, मुझे चंगा कर दे, मेरी तकलीफ दूर कर दे, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। आ जाओ, शुक्रगुजारी के साथ अपनी जगह से उठें और कहें, शुक्र है खुदा, अब सब कुछ ठीक है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा की बंदी के लिए। सिस्टर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। खुदा आपको, आपकी मिनिस्ट्री को और बढ़ाए और बरकत दे। आपके टाइम के लिए